हेलो 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 चलिए, तो टॉपिक ऑफ द डे is conductance. We have completed solid state and solutions. We have also conducted one test of solution. Unfortunately, only 3 students participated in that. And now we are dealing with electrochemistry. I hope we have discussed about electrochemistry, its type, and some terms. And as you know, in this lesson we shall study 3 topics: conductance, electrolysis, and electrochemical cell. So today we are discussing about conductance. Conductance. Somewhere you may find conductivity. Although conductivity and conductance are slightly different, but people are using it lavishly, sometimes as conductance and sometimes as conductivity. So we shall use the term conductance. What is conductance? You know, conductance is ability of a substance to allow electricity through itself. Conductance is ability of a substance to allow electricity through itself. कोई वस्तु अपने से होकर इलेक्ट्रिसिटी को इतना पास करता है, जिस कैपेसिटी से, जिस क्षमता से, उसे कहते हैं कंडक्टेंस। अगर कोई ज्यादा बिजली पास करता है तो उसका कंडक्टेंस हाई है, जो कम करता है उसका लो है। तो एक क्षमता है किसी वस्तु में अपने से होकर इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देने की। द एबिलिटी ऑफ ए substance to allow electricity to pass through itself is called conductance. Conductance, ability of a substance to allow electricity to pass through itself is called conductance. If conductance of a substance is high, we say it is good conductor. If conductance is low, we say it is bad conductor, or insulator, or sometimes semiconductor. This conductance is denoted by G. G, capital G. Conductance is denoted by capital G. And its unit is ohm inverse. Unit. Ohm inverse. या mho या science. You know, unit of resistance is ohm. Resistance ohm है, उसका उल्टा कंडक्टेंस है, ये ohm inverse. You can define conductance also as reciprocal of resistance. Conductance is reciprocal
equal to 1 by R. Conductance is reciprocal of resistance. Means if resistance is high, it means conductance is low, and vice versa. Or resistance is low means conductance is high. ठीक है, कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, इसका लिमिट ओम इनवर्स या इसको आजकल मो कहते हैं एमएचओ, और एसआई सिस्टम में हम लोग साइमंस कहते हैं, साइमंस। अभी बुक में आपको दोनों मिलेगा, जानते ही हैं। अभी हम लोग ना फुल्ली एसआई यूज करते हैं ना फुल्ली कन्वेंशनल यूज करते हैं। हम तो बुक पढ़ते हैं, देखते होंगे, बट वी शुड ट्राई टू गो टुवर्ड्स एसआई सिस्टम, दैट इज मोर साइंटिफिक। ठीक है, कंडक्टेंस क्या हुआ? एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इटसेल्फ। इसका सिंबल क्या होगा? जी। इसका लिमिट क्या होगा? ओम इनवर्स या मो या साइमंस। और ये एक्चुअली है क्या? इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, G इक्वल टू 1 by R। ओके, बताओ इसको। अब ये कंडक्टेंस को हम लोग कई रूप में डिनोट करते हैं, मेजर करते हैं। मतलब बात एक ही है, कई रूप में मेजर करते हैं। जैसे एक है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसी को एक्चुअली कंडक्टिविटी कहा जाता है। कीप इन माइंड, कुछ लोग कंडक्टेंस को ही कंडक्टिविटी कहते हैं, लेकिन आजकल हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस के लिए कंडक्टिविटी यूज करते। तो कंडक्टिविटी देखेंगे, थोड़ा सावधानी से उसको पढ़ेंगे, आपको अर्थ लग जाएगा कि यूज किसके लिए होगा, तो यूनिट से पहचान लीजिए। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है? आइए थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं। ओम्स लॉ आपने पढ़ा है, ओम्स लॉ पढ़ा है, R varies as L by A, याद आया? और R is equal to rho into L by A। Where R is resistance, L is length of the conductor, A is cross sectional area of the conductor, and the rho is called specific resistance or resistivity। R is resistance, L length, A cross sectional area, and rho specific resistance, और इसी को रेसिस्टिविटी कहते हैं। मान लीजिए कंडक्टर है, ये L हुआ लेंथ, और ये एरिया पार स्क्वायर निकालेंगे। अगर सिलिंड्रिकल है तो, रेक्टेंगुलर है तो L इंटू A से निकालेंगे। तो L is length of the conductor, A is cross sectional area, so R varies as L by A। मतलब resistance is proportional to length and inversely proportional to A। कंडक्टर का लेंथ बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ता है और एरिया बढ़ने से घटता है। इसे थीन वायर का रेसिस्टेंस ज्यादा होता है, मोटे वायर का रेसिस्टेंस कम होता है। आप गौर करेंगे, आप घर में पंखा होगा, पंखा या कोई और भी बिजली का मशीन मोटर वाला होगा, उसमें देखेंगे कि वायर लपेटा रहता है, कॉपर वायर पतला वायर को कई बार लपेटता है,
खूब मोटा वायर नहीं देता है, लेकिन वहां रेसिस्टेंस उत्पन्न है। जितना पतला तार रहेगा उतना ज्यादा रेसिस्टेंस उत्पन्न होगा और उतना अच्छा वो मशीन आपका चलेगा। याद रखिए, किसी भी मोटर में जितना थिन वायर है वह उतना अच्छा है, उसकी कैपेसिटी उतनी अधिक होगी। ठीक है, तो रिले लगाते रो लगाते हैं, इस रो को बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी। अब देखिए 1 बाय आर क्या होगा, 1 बाय रो इंटू ए बाय एल। 1 बाय आर क्या होगा बताएं अभी। रेसिप्रोकल रेसिस्टेंस इज कंडक्टेंस, ये हो गया जी। 1 बाय रो को बोलते हैं कप्पा ए बाय एल। तो कप्पा इक्वल टू G into L by A। तो कप्पा पढ़ते हैं, कप्पा, और नाम का इसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। ठीक है, कप्पा हुआ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जी हुआ कंडक्टेंस, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर और ए एरिया ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब कप्पा को कैसे डिफाइन करो, सोचो। अगर एल लेते हो 1 और ए लेते हो 1, कप्पा क्या होगा? कप्पा इक्वल टू जी, कप्पा इक्वल टू जी। ऊपर में ऊपर बेटा था when L equal to 1, A equal to 1, कप्पा इक्वल टू जी। अब 1 क्या हम बात करेंगे अभी, बात पहले डिफाइन कर लेते। तो कप्पा हुआ स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर of a unit length and unit cross sectional area। अगर कंडक्टर का लेंथ यूनिट है और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी यूनिट है, उसका जो कंडक्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, तो वी शुड डिफाइन इट। क्या लिखेंगे? Conductance of a conductor of unit length and unit cross sectional area is called specific conductance। ठीक है, यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब ये हम यूनिट यूनिट क्यों बोले? तो यहां भी अभी 2 सिस्टम चल रहा है। एक सिस्टम है सीजीएस सिस्टम, जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर में, एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं। एक है एसआई सिस्टम, जिसमें लेंथ को मीटर, एरिया को मीटर स्क्वायर लिखते हैं। इसलिए कप्पा का यूनिट दोनों मिलेगा बुक में। आप लोग बहुत गलत समय पर जन्म ले लिए। कुछ दिन पहले जन्म लिए होते तो सिर्फ कन्वेंशनल सिस्टम पढ़ते, कुछ दिन आगे जन्म लेते तो सिर्फ एसआई सिस्टम पढ़ते। ऐसे समय जन्म लिए कुछ दोनों है, न फुल्ली एसआई है न सीजीएस है। तो हम उसको देखते हैं, इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ कप्पा when L is 1 centimeter
A 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इक्वल टू G इंटू L बाई ए है ना, तो G का हो गया, क्या होगा, G हो गया साइमंस, चाहो में रहने दो, ओम इनवर्स सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। कप्पा का यूनिट सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर ग्राम पर सेकेंड में, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अब देखिए एसआई में क्या होगा। इन एसआई सिस्टम, जो आजकल हमारा सिस्टम चल रहा है, इसमें क्या होगा, पाइकल टू साइमंस मीटर बाई मीटर स्क्वायर, मतलब साइमन पर मीटर। याद रखो, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज ओम पर सेंटीमीटर या साइमन पर मीटर। ठीक है, कौन सा यूज करेंगे, आप जानते हो लॉ ऑफ होमोजेनिटी है कि और डाटा जिस सिस्टम में रहेगा, अगर सीजीएस सिस्टम में रहेगा तो हम सीजीएस यूज करेंगे, ऐसा ही रहेगा तो ऐसा यूज करेंगे, या आप फिक्स कर लो आप ऐसा ही यूज करोगे, जो डाटा दिया हुआ है सीजीएस में उसको ऐसा में चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये था स्पेसिफिक कंडक्टेंस कंडक्टर के लिए। अब इसी को जब हम ले जाएंगे इलेक्ट्रोलाइट में सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का तो लेंथ नहीं होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं होगा, उसमें होगा कि सॉल्यूशन इनक्लोज्ड बिटवीन टू इलेक्ट्रोड ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया। ये कंडक्टर हैं, ये दो मान लो इलेक्ट्रोड है, इस दोनों इसका एरिया मान लो यूनिट है 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रखा है 1 सेंटीमीटर दूरी पर, एक ध्यान से। ठीक है, इकाई एरिया का दो कंडक्टर इकाई दूरी पर रखा हुआ है, इसके बीच में जो सॉल्यूशन है उसका कंडक्टेंस कहलाएगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। ठीक है, यूनिट एरिया और यूनिट डिस्टेंस पर रखे हुए दो इलेक्ट्रोड के बीच जो सॉल्यूशन है उसका कंडक्टेंस स्पेसिफिक कंडक्टेंस। याद रहेगा, यूनिट एरिया और यूनिट डिस्टेंस, 1 मीटर स्क्वायर एरिया का दो इलेक्ट्रोड 1 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, उसके बीच जो सॉल्यूशन है उसका जो कंडक्टेंस वह स्पेसिफिक कंडक्टेंस। लिखते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट वो तो था सॉलिड के लिए, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन इनक्लोज्ड बिटवीन two electrodes of unit area kept at unit distance. Kept at unit distance. यूनिट एरिया का ये प्लेट है और यूनिट डिस्टेंस में रखा हुआ है, इस दो इलेक्ट्रोड के बीच जो सॉल्यूशन है इसका एरिया मान लो 1 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर, ये दूरी 1 मीटर, इसके बीच में जो सॉल्यूशन है उसका कंडक्टेंस कहलाएगा, क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस।
अब सोच कर देखिए, अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया है इसका भी, 1 मीटर स्क्वायर इसका भी, 1 मीटर दूरी पर रखा हुआ है, इस दोनों के बीच जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब। अगर ये सीजीएस लेंगे तो 1 cm स्क्वायर 1 cm स्क्वायर और 1 cm दूरी, 1 सेंटीमीटर दूरी पर 2 इलेक्ट्रोड है जिसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके बीच का सॉल्यूशन वॉल्यूम कितना होगा 1 cm क्यूब। यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूशन का कंडक्टेंस याद रखो, यूनिट वॉल्यूम 1 cm क्यूब या 1 मीटर क्यूब का जो कंडक्टेंस है वो सही में स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। ये तो साइंटिफिकली आपको बताया गया टेक्निकल डिफिनीशन, लेकिन रियल डिफिनीशन क्या होगा, रियल क्या होगा, हाँ रियल होगा कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और इसका सिंबल आपको मालूम है, इसका सिंबल है कप्पा। तीसरा डिफिनीशन, कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्पेसिफिक। याद रखिए, यूनिट वॉल्यूम का कंडक्टेंस है स्पेसिफिक। 3 डिफिनेशन बताया, एक सिंपल कंडक्टर के लिए, सॉलिड कंडक्टर के लिए, लेंथ और एरिया जिसके पास है, और 2 बताए सॉल्यूशन के लिए, एक टेक्निकल डिफिनेशन और एक कंसेप्चुअल डिफिनेशन। दिमाग में सेट कर दो, यूनिट वॉल्यूम का कंडक्टेंस स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगा। यूनिट वॉल्यूम मीन्स 1 मीटर क्यूब और 1 सेंटीमीटर। यूनिट वॉल्यूम मीन्स, फिर वही प्रश्न उठेगा कौन सा लेंगे हम, तो ये मेरे पर डिपेंड नहीं है, ये डिपेंड है न्यूमेरिकल में जो और प्रॉब्लम दिया हुआ है, कंडक्टेंस दिया है, रेसिस्टेंस दिया है, या लेंथ दिया है, एरिया दिया है, वो सब अगर दिया है सेंटीमीटर में, ओम में, हम लेंगे सीजीएस सिस्टम। अगर वो सब दिया है मीटर में, साइमंस में, हम लेंगे ऐसा सिस्टम। यही नियम है, जिस सिस्टम में एक डाटा रहेगा सब उसी में। अब आइए